السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده الله العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة أو كما قال. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. میرے محترم و مکرم جناب علماء کرام، حضرات سامعین اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام و معزز مہمان اور طالب علم بھائیوں، میں آج خاص طور سے اپنے طالب علم بھائیوں سے خطاب کرنا چاہوں گا. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ طالب علم کون تھا اور کون ہے. طالب علم کون ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں طالب علم. اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے روبرو ہماری حاضری ہے اور سمجھنے اور یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے. آئندہ نسلوں کی بھی ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ مسجد کی چہار دیواری میں بغیر پریس کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر ٹوپی اوڑے ہوئے اور چہرے پر داڑھی سجائے ہوئے اور شلوار ٹکنے سے اوپر کیے ہوئے یہ جو لوگ نظر آتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق ہے جو علم نہیں جانتی، جسے ترقی سے کوئی سروکار نہیں. یہ لوگ قدامت پرست ہے، رجعت پسند ہے، ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے. ان لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، یہ انٹرنیٹ نہیں جانتے. کیسے خوش مزاج لوگ ہیں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے. ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ اپنی اماں کو، بہن کو، اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو بغیر برقع کے باہر نہیں آنے دیتے. اذان دینا، امامت کرنا ان کا کام ہے. ان کی رسائی اور دوڑ صرف مسجد تک ہے. اس کے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ان کی سوچ کام نہیں کرتی. یہ لوگ ترقی نہیں جانتے. یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، معمولی بات میں جذبات میں ابھر جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں. یہ غریب لوگ ہیں، ان کا کام لوگوں کو لڑانا ہے، فساد برپا کرانا ہے. یہ طالب علم کی وہ شکل ہے جو انگریز نے اپنے چیلوں چپاٹوں کو بتایا تھا. یہ طالب علم کی وہ شکل و صورت ہے جو آج مسلمانوں کی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخلہ کرائیں، وہ وہی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے دنیا کی سمجھ آنے دو، دکان اور کاروبار کا علم آنے دو، تھوڑی بہت اسے انگریزی سیکھنے دو. میں اسے مدرسہ بھیج کر عزو معطل نہیں بنانا چاہتا، بیکار بنانا نہیں چاہتا. یہ طالب علموں کی وہ شکل ہے جو انگریز نے بتائی، یہودیوں نے بتائی، امریکہ نے بتائی، جس کا ہمارے مسلمانوں نے بھی اعتبار کر لیا. اس لیے آج اسکول اور کالج والے، یونیورسٹی والے طلبہ سے چڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں. آؤ، اگر تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے تو تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا. مکہ کی سنگلاخ وادی کی طرف جانا ہوگا. اس زمانہ میں جب وہاں ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا، تو اسی وقت دار بنی علقم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا. اس مدرسہ کا طالب علم کون تھا؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان بن عفان تھے، علی رضی اللہ عنہ تھے. اس مدرسہ میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے. اس مدرسہ میں بلال حبشی رضی اللہ
अल्लाह अन्हु पढ़ते थे। उस मदरसा में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी सबक लिया था। उस मदरसा में सहाबा ने अपने आप को तैयार किया था। फिर लोगों ने कहा मदरसा बंद करो, इन लोगों को निकाल दिया जाए, मदरसा को बंद कर दिया जाए, मदरसा पर पाबंदी लगा दी जाए। अबू जहल ने कहा बंद करो, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। मदरसा बंद करोगे तुम गालिब आ जाओगे। कुरान ना सुनो और ना सुनने दो, कुरान ना पढ़ो और ना पढ़ने दो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मगर दीवाने चल पड़े मदरसा सीने में लिए हुए। वहाँ मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले मदरसा खोले बैठे थे, फिर जाकर दूसरा मदरसा कायम हो गया। आज की तारीख में उनको असहाबे सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है। वहाँ पढ़ाने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जिब्राइल नए नए सबक लाया करते थे, सबक पूछा भी करते थे, शागिर्दों के पढ़ने का तरीका भी बताया करते थे और उस्ताद से पढ़ने का तरीका भी सीखते थे। ये मदरसा कायम हुआ, दुनिया के सारे लोग परेशान, मदीने के मुनाफिक परेशान हो गए कि मक्का वालों की जान छूटी तो मदीने वालों पे आ पड़ी, ये मदरसा करेगा क्या। मदरसा ने बताया हम सब कुछ करना जानते हैं। लोगों ने ये कहा मूंग और मसूर की दाल की इस अबू हुरैरा को देखो, इस अनस को देखो, इस बिलाल को देखो और खब्बाब को देखो, इन मदरसा के तलबा को देखो, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और बातें करते हैं लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि हम दीन को गालिब कर देंगे। पहले अपनी रोटी का तो बंदोबस्त करो, अपने कपड़ों का नज़्म करो, सड़कों पर पड़े रहते हो। क्या कोई रोटी के टुकड़े दे दे और तुम खा लेते हो और तुम कहते हो हम मदीने में खिलाफत करेंगे, हम मक्के में खिलाफत लाएंगे, हम रोम और फारस को फतह करेंगे। और तालिब इल्मो तुम्हारा दिमाग खराब है। मगर तारीख ने देखा यही तलबा थोड़ी देर के लिए किताबें बंद करके हाथों में तलवारें लेकर बदर की मैदान की तरफ जा रहे थे और उसी परचम का सबूत दे रहे थे, जिस परचम में सफेद रंग इल्म की निशानी है और काला रंग जिहाद की अलामत है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने मदरसा की बुनियाद रखो। तेरे मदरसा को ना कोई बंद कर सका है और ना बंद कर सकेगा। तेरा मदरसा मक्का से उठाया गया तो मदीने में जाकर आबाद हो गया। तेरे मदरसा पर मदीने वालों की उंगलियां उठी तो बदर में जाकर पड़ाव डाल दिया। फिर बदर के मैदान से वापस आया तो तूने मदरसा नहीं छोड़ा। वही नबी थे, वही युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वही तालिब इल्म था कि सीख रहा था और याद कर रहा था। ये जो आज हद्दसना की खुशबूदार आवाज लगती है, ये हमें बताते हैं कि मदरसा बंद नहीं हो सकता, इसलिए कि हमने नबी के अल्फाज को याद रखा है, नबी की अदाओं को महफूज किया है, नबी की वफाओं को याद रखा है, नबी की शक्ल सूरत को याद रखा है, नबी की गुफ्तार को, नबी के किरदार को याद रखा है। खुदा की कसम नबी की मुस्कुराहट को भी याद रखा है। हमने नबी की तलवार को याद रखा है, हमने नबी के अमामा को याद रखा है, हमने नबी की जंगी टोपी को याद रखा है, हमने नबी के सर पर लगने वाले जख्म को याद रखा है। रब्बे काबा की कसम हम उस लुआब को भी नहीं भूले जो नबी तलबा में तकसीम किया करते थे, और हम उस खून को भी नहीं भूले जो नबी दीन की खातिर लुटाया करते थे। दुनिया वालों, तुम दीनी तालिब इल्म की नज़ीर और मिसाल नहीं लगा सकोगे। इस दीन और इल्म की हिफाजत के लिए उन तालिब इल्मों ने जिनसे समुद्रों को अबूर किया था और जिन इम्तिहानात को पास किया था, तंगियों और घाटियों को अबूर किया था, तुम उसको तसव्वुर में भी नहीं ला सकते हो। ये मदरसा चलता आ रहा है। मदीने वालों ने साजिश की कि मदरसा बंद करो। आपस में मशवरा हो गया कि कुरान इनके मशवरा के सिलसिला में जिक्र करता है, लइन रजाना इलल मदीना, दूर में गए थे जिहाद के लिए, वापस आ गए, रास्ते में मशवरा हो गया, लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, जब हम मदीने की तरफ लौटेंगे तो हम इज्जतदार लोग इन जलील लोगों को निकाल देंगे। हाय मेरे अल्लाह, उन मुनाफिकों को कैसा नाज था अपने मुअज़्ज़ज़ होने पर, उस जमाना में भी था और इस जमाना में भी है। ये मदरसा वालों को जलील समझते हैं, हालांकि आसमान भी जानता है कि ये मुनाफिक जलील है, फरिश्ते जानते हैं कि यही जलील है और जलील बुज़दिल होता है। ये मुनाफिक बुज़दिल है, जलील कमीना होता है, ये मुनाफिक कमीने हैं, ये गैरों के हाथों बिकने वाले, मुशरिकों के साथ मुआहिदा करने वाले, ये कैसर और फारस के सामने घुटने रगड़ने वाले, ये अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझते थे और आज भी मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। ना ये कल मुअज़्ज़ज़ थे ना आज मुअज़्ज़ज़ है। मशवरा हो गया कि मदरसा बंद करो। उसी मदरसा के गिराने वाले के घर से एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और कहा, आका हुक्म दीजिए, गर्दन उड़ा दूं इस मुनाफिक की।
मदरसों की हिफाजत के लिए खुदा फिरौन के घर मूसा खड़ा करता है, होता है कि नहीं होता? ऐसा माजी में हुआ है कि नहीं हुआ? ओ तालिब इल्म, याद कर, तू उस जमाने में तालिब इल्म था, तुझे नबी पढ़ाया करते थे, सहाबा एक दूसरे को पढ़ाया करते थे। तू मदरसा का तालिब इल्म था मगर तू जिहाद से गाफिल नहीं हुआ। तू वहाँ पढ़ा करता था मगर तू मखलूक खुदा से गाफिल नहीं हुआ। तू खुदा के नाफरमानों से गाफिल नहीं हुआ। तूने ही मारकाए बदर लड़ा था, तूने ही वहद लड़ा था, तूने ही खंदक खोदी थी, तूने ही खुद खंदक के अंदर अपने नबी के पेट पर पत्थर बांधकर रोम और फारस को फतह का ऐलान करते सुना था। ओ तालिब इल्म, तेरी गैरत का ये निशान था कि तू अपने उस्ताद के साथ उम्रा करने जा रहा था कि उम्रा करेंगे, कि रास्ते में जाकर एक तालिब इल्म भाई गुम हो गया, एक मुसलमान गुम हो गया, तेरा एक साथी गुम हो गया, काफिरों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी की खबर मिली। ओ तालिब इल्म, याद कर, फिर तेरा मदरसा कहाँ सजा था? तेरा मदरसा एक दरख्त के नीचे सजाया गया था, वो दरख्त भी महफूज कर लिया गया। तूने अपने उस्ताद के हाथों में हाथ दिया था, तूने अपने आका के हाथों में हाथ दिया था, तूने मौत पर बैत की थी। वो तालिब इल्म जब मौत पर बैत कर रहा था तो पूरा मक्का लरज़ रहा था और आसमान से ये सदाएं आ रही थी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। फतह आज उतर चुकी है जमीन पर। मेरे मोहतरम तालिब इल्म भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मदरसा का निसाब क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदरसा में सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसा में नबी का कलाम पढ़ाया जाता है, मदरसा में कुरान पाक से लेकर दीनी मसाइल यानी फिक़ह और उसूल फिक़ह पढ़ाए जाते हैं, मदरसा में उलूम अरबिया पढ़ाए जाते हैं, मदरसा के अंदर नबी की सीरत पढ़ाई जाती है, मदरसा में कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है, उसके पैगाम पढ़ाए जाते हैं। ये मदरसा मक्का से चला था, फिर इस मदरसा ने मदीने में जड़े पकड़े, फिर दोबारा मक्का की तरफ मुंतकिल हुआ, हर घर में जाकर खुला। वहां से ये मदरसा ताइफ की तरफ मुंतकिल हुआ। ताइफ में मदरसा को खोलने नहीं दिया गया था, बल्कि पत्थर मारे गए, वहां से निकाला गया था। अल्लाह के नबी अल्लाह का कलाम लेकर वहां तक पहुंचे। आखिर अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। सहाबा ने मस्जिद संभाली, खिलाफत भी चलाते थे और मदरसा भी, इसलिए कि नबी का यही काम था। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब सिखानी है, हुकूमत सिखानी है, नबी की हदीस सिखानी है, इल्म फिक़ह सिखाना है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माना में तालिब इल्मों को हुक्म दिया गया कि तुम्हें फारस पर चढ़ाई करनी है। वो फारस पर चढ़ाई करने के लिए आ गए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में तालिब इल्मों को हुक्म दिया गया कि तुम रोम पर चढ़ाई करो। वो रोम पर चढ़ाई करने के लिए आ गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये मदरसा मुंतकिल होता चला गया। फिर मेरे यारों, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस मदरसा को ले जाकर कुफा में मुंतकिल कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु जो कि अल्लामा थे, जो वक्त के फ़क़िह थे, जो वक्त के फ़क़िह आज़म थे, जो वक्त के मुफ़क्किर इस्लाम थे, जिन्होंने अबू जहल की गर्दन भी काटी थी और जहालत का गला भी दबाया था, वो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कुफा में जाकर डेरा डाल देते हैं। उसी कुफा में अल्लाह ताला इब्राहिम नख़ैर को पैदा करते हैं, हिमादर को पैदा करते हैं। मदरसा आबोताब से चलता है। खुदा की करोड़ों रहमतें हो कुफा की सरजमीन पर। वहाँ से एक और तालिब इल्म निकलता है जिसको दुनिया इमाम अबू हनीफा के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। इसी चंद बातों पे अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।